तो नमस्ते जी आप सभी को। हम अपनी योग का कार्य कर रहे थे। आसन हो गया, प्राण क्रिया कर रहे थे। अब प्राणायाम कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ क्या हो गया है। So we continue doing it. What happened? I'm just trying to fix this. Okay, never mind. So we'll keep going. So we were doing, so we did most of the pran kriyas, yeah? So now we were on to Anulom Vilom, alternate nasal breathing. So let's go through the breathe in to the left, breathe out to the right, breathe out to the right, breathe in to the right, breathe out to the left, breathe in to the left, breathe out to the right, breathe in to the right, breathe out to the left. Now we'll do what's called Nadi Shrodhan Pranayama. So Nadi Shrodhan is same thing as Anulom Vilom, but we are concentrating very deeply. Unfortunately, Maya is making too much noise. Never mind. So keep concentrating. These are all tests of life. If you get distraction or something happens, it actually makes you only learn to how more strongly you can focus in yourself. So let that distraction of Maya not be a distraction. Yeah. So now Anulom belong into Nadi Shrodhan. So keep your fingers the way I say, two as a fulcrum, thumb, and your ring finger. We'll breathe into the left, then we'll hold it now this time. And the breath will be very subtle, so it's not making any more noise. So you'll know the difference why it's more subtle, because then your concentration is much, much more deeper inside. So let's start Anulom Vilom into Nadi Shrodhan now. Into the left, close both nostrils, hold it. Open the right nostril, breathe out slowly through the right nostril. Close both nostrils, then hold it. Breathe in through the right nostril. Then close both nostrils. Breathe out through the left nostril very quietly, so subtle that you don't yourself know that you're breathing, but the air is so quietly going in and out. Close your left nostril, hold it. Breathe in through the left nostril, hold it. Breathe out through the right nostril and hold it. Close both nostrils. Breathe into the right nostril. Close both nostrils and be in there. Breathe out to the left nostril. Close both nostrils and feel your presence. Breathe into the left nostril. Close both of them and feel your presence inside yourself. Breathe out to the right nostril and hold it. Breathe into the right nostril. Close both nostrils and feel your presence inside yourself. And then breathe out through the left nostril. You can rest your hand on your knees. Be in this state now. Because finally you have reached the state of Ekagra. Ekagra is the state
in which you really are now touching yourself into the Sukshma Sharir towards you, where Sat Chit Anand sit. So Sat is Akash, so Prakriti, Atma, Paramatma, that's Sat. Chit is Atma or Paramatma. Anand is Paramatma. तो आनंद और ब्लिस को पहुंचने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा, एकाग्र स्थिति में आना पड़ेगा। तो ये जो ये रूटीन है, ऐसे करने से आप उस जगह पर पहुंच सकते हो। एंड देन आप जब यहाँ पर हो तो आप ध्यान लगा सकते हो। मतलब नहीं तो ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम तो अभी संप्रजा स्थिति में है ना। जब संप्रजा स्थिति में बन जाएंगे तो दूसरा बात है, तो केवल आंख बंद कर लेना, आप पूरी पूरी ध्यान में हो जाओगे। लेकिन हम वहां हैं नहीं, हमें प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं बोला ना, कुछ प्रैक्टिस करने से मेमोरी बनती, मेमोरी से हैबिट, हैबिट से टेम्परामेंट, टेम्परामेंट से आपकी पर्सनैलिटी हो जाती है, फिर वो पर्सनैलिटी आपकी संस्कार बनती है, संस्कार फिर आत्मा से जन्म जन्मों में जाती है। इसे जो सात्विक रास्ते पे चलोगे तो सब सात्विक पन बैठता चला जाता है। अगर राजसिक तामसिक में तो उल्टा ऐसे जाते रहता है। क्वाइट सिंपल फॉर्मूला है। तो चलो कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, क्योंकि स्थिति तो बन गई है अच्छी तरह से। उद्गीत करते ओम का। ओम ये जो साउंड एनर्जी वाइब्रेशन है ना, उसी का आप गुण गाए और उसी का जो क्वालिटीज है उस पर ही रहे थोड़ी देर के लिए। तो उसका कंसंट्रेशन आप बनेगा धारणा। धारणा बनने से आपकी समाधि की कुछ फील हो जाएगी, एटलीस्ट टेम्पोरली आप फील करोगे। टू फील ऑल द टाइम रिक्वायर्स अ प्रैक्टिस। और फिर हम सबको अपने संप्रजा से संप्रजा, सरगुण से निर्गुण, सानत से सुष्मिता, स्थिति बनने में बहुत समय लगता है। तो बैठकर खूब अच्छी तरह से मुस्कुराहट रखिए अपने चेहरे पर, क्योंकि जो मुस्कुराहट जब आती है तो आप फिर दिल से जीने लगते हो। अगर मन से जियोगे तो सब बार गुस्सा ही रहता चेहरा पे। तो मुस्कुराइए, कोशिश कीजिए मुस्कुराते रहे, चेहरे पर मुस्कुरान रहे। सांस अंदर, तो वाचिक है उपांशिक और मानसिक। तो आपकी लवा जो चक्रा है आ ऊ, जब मिडिल नाभि से ऊपर आती ऊ का असर, तो मटीरियल लिविंग, बेसिक लिविंग था, क्रिया वगैरह नीचे का आ, बीच में आपकी मटीरियल सक्सेस। मानसिक जब आती है करते हैं हम, तो पूरी आपकी मेटाफिजिकल, पूरी ऊपर की जितनी एनर्जी सेंटर्स स्टिमुलेट, तभी से आ उमा ओम का हम उस पे उद्गीत गाते हैं उसका। एक बार और ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। संकल्प। हे परमपिता परमात्मा, हम अपने विभिन्न दुखों की निवृत्ति के लिए और आपके पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए अपने पूर्ण शक्ति से आपके शरण में आए हैं। आप कृपया करके हमारे संपूर्ण दुखों को दूर करके हमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति कराइए और आपकी कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहे।
आसन, स्थिर सुखद आसन, एक आसन एक अवस्था में बैठना। जब आसन की स्थिति होती है तो हम ध्यानस्थ होते हैं, तभी हम मेडिटेट कर पाते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य है सुख प्राप्त कर कर दोनों लोगों का उन्नति करना। भौतिक सुख शरीर तक सीमित है, आती और जाती और स्थायी नहीं है। स्थायी और आत्मिक सुख और सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा के शरण में प्राप्त होता है। उसकी आशीर्वाद और कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, सभी चीज में ग्रेटिट्यूड हो, थैंकफुलनेस हो, तब आपको सब कुछ मिलेगा। वही है ट्रांजैक्शन। 5वां पतंजलि अष्टांग योग का स्टेप है प्रतिहारा। प्रतिहारा का अर्थ होता है कि हम अपने आप को, जो स्थूल शरीर है उससे अलग होकर सूक्ष्म शरीर तथा सही रूप को पहचाने कि मैं सूक्ष्म स्वरूप हूँ। सूक्ष्म तो मन भी सूक्ष्म नहीं है, वो तो केवल स्थूल कंपोनेंट बनता है। सूक्ष्म आत्मा है। तो आप वहां जाइए, जा नहीं सकते तो अपने आप को रिमाइंड कीजिए, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं चेतन स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध आत्मा। मैं ये जो 5 महाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, 5 तन मात्राएं, रूप रंग स्पर्श गंध शब्द, 10 इंद्रिया चित्त अहंकार बुद्धि कुछ नहीं, मैं शुद्ध आत्मा, मैं चेतन स्वरूप हूँ। अपने आप को पहचाने। जरूरी है, जैसे मैं योग निद्रा में कह रहा था, आपको अपने आप को पहचाने पहले। मैं शुद्ध आत्मा। द बॉडी कीप्स चेंजिंग, माइंड कीप्स चेंजिंग, इमोशंस कीप चेंजिंग, थॉट्स कीप चेंजिंग, एवरीथिंग चेंजेस, and everything else that we do are human constructs based on our perceptions, our hearing ability, our visual activity, our touch, our taste. It is all made as a human construct. Even our time that we have made is a human construct. सच्चाई एंड रियलिटी टू नो इज बियॉन्ड दैट। ये तो ड्राइवर मैनुअल है, लाइफ का मैनुअल है। तो आप जो चाहिए बहुत गहरा ज्ञान, तो वो जाइए, वहां जाना पड़ेगा। तो फिर वहां का जो यूनिवर्सिटी है एज अनलिमिटेड नॉलेज, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। वेदास, द 4 वेदास आर containing information as much as it can about human creation or every aspect of life. There is a guide, but अगर आप पहुंच जाओगे यहाँ तो it opens everything automatically करके। मैं शुद्ध आत्मा, मैं चेतन स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध आत्मा, मैं चेतन स्वरूप हूँ। इंटरसेप्शन, अपने आप को पहचाने। तो जब वो पहचान हो जाता है तो आप ध्यान, ध्यान समाधि और संयम की जो स्थिति है उसमें जाना है। उसके लिए थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेशन या धारणा मेंटेन करना पड़ता है। धारणा बनाए तो जो सच स्वरूप है, चेतन स्वरूप, जो क्वालिटीज है उसी पर रहे। जितनी जड़ की चीज होती है, गड़बड़ी तो नहीं है, वो तो सहारा देता है आपको। आपकी इष्ट देवता है, आपकी जो कुछ है सब सहारा देने वाले हैं। कंसंट्रेशन बनाने के लिए एक मार्ग है, लेकिन सच जानना जरूरी है। जो सच, वो जो ट्रुथ है अल्टीमेट, उसको उसमें जाना है। तो मैं कहता हूँ हर बार कि अगर सिटी जाना फेरमेटा रोड लोगे तो 2 घंटे लगेगा मंडे मॉर्निंग में, वो ज्यादा। और M2 लोगे तो 20 मिनट्स लगेगा, वो लेस देन दैट। तो वो ज्ञान जरूरी है जानने का। तो फिर कोशिश है, कोशिश करना पड़ता है। तो पहला क्वालिटी ये है कि ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, ओमनीपोटेंट, सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, अजन्मानंद, अमर, निर्विकार, अजर, अमर, अभय, नित्य कर्ता। वो शक्ति, वो जो एनर्जी है उसको पहचाने, उसमें गुण, उसमें ही आप अपने आप को रखे उसके पास में।
जो 9 द्रव्य है बोलते हैं ना, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, हर काल हर समय, 24 गुण 33 कोटियां 5 क्रिया, ये सब आप महसूस करें, ये बनावट है. So the creator is, the efficient cause. Otherwise, the material components are there, the space is there. So the planetary system, then every other creation that is made is the energy, that form is in it. It is everywhere, but it's not in everything. Knowing the difference is important. तो अनंत काल से अपने उपकारों अपनी आशीर्वादों की वर्षा करते हो, प्राणी मात्र में संपूर्ण कामनाओं को आप ही प्रत्यक्षण पूर्ण करते हो. हमारे लिए जो कुछ शुभ तथा हित करे उसे आप बिना मांगे स्वयं हमारे झोली में डालते जाते हो. आपके आंचल में विचल शांति तथा आनंद का वास है. आपके चरण चरण की शीतल छाया में परम तृप्ति है, शाश्वत सुख की उपलब्धि तथा सब अभिलषित पदार्थों की प्राप्ति है. हमें सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो. हम स्तुति प्रार्थना उपासना करें, हम कमल की फूल की तरह रहे, जैसे माया रूपी जो सृष्टि है उसमें रहते हुए भी इससे अलग रहे. तो दूसरा क्वालिटी है सर्वरक्षक, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, पृथ्वी लोक वनस्पति देवलोक, हर काल हर समय हर स्थिति हर मोड़ हर जगह. तो रेंडमनेस नहीं होता फिर जिंदगी में, एक्सीडेंट्स होने वाला है ही नहीं, सब सिंक्रोनिसिटी होती है ना, सिंक्रोनस हो जाती है. देखते हो ना चिड़िया, स्कूल ऑफ बर्ड्स व्हेन दे फ्लाई, कितनी नाइस ब्यूटीफुल वे जाता है. तो यू हैव टू बी इन ट्यून. लाइफ की ट्यून की बात है. सब में आपका ये जो मैं ट्रांजैक्शन बोल रहा, रॉन्ग चीज ट्रांजैक्ट करोगे तो फिर नहीं होता है. आप सही ट्रांजैक्शन लाना पड़ता है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशन, इसका कनेक्शन तब होगा. वैसे नहीं आप ब्लैंक कर लगते हो. आप तो बना लिया है कि मंडे को दिया, ट्यूसडे को दिया, मैं ये कर लिया, मैं वो कर लिया, मुझे ये दे दो वो कर दो. ये कैसे बात हुआ? इतना सस्ता तो नहीं है ना, इतना चीप भी तो नहीं है. इतनी गहरी जब ज्ञान चाहिए. तो हमें सात्विक जो स्थिति है ज्ञान, ये हमें प्राप्ति हो. क्षमा सरलता स्थिरता निर्भरता अहंकार शून्यता, सब अच्छे गुण हमारे संपत्ति बने. हमारा शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट हो, मन सूक्ष्म तथा उन्नत हो, आत्मा पवित्र तथा सुंदर हो. आपके संस्पर्श से हमारी सारी शक्तियां विकसित हो. हमारी हृदय में दया तथा सहानुभूति हो, हमारी वाणी में मिठास हो, हमें दृष्टि में प्यार हो, हमें बुद्धि तथा विद्या से परिपूर्ण करे. हमारे व्यक्ति महान तथा विशाल हुए. दीना दीनों के घर में विचरने वाले ईश्वर आपके चन्नान बिंदियों में हमारा जीवन अर्पित हो. इसे अपने सेवा में लेकर हमें कृतार्थ करें, हमें कृतार्थ करें. ओम का तीसरा अर्थ है शुद्धमसि बुद्धमसि मुक्तमसि निरंजनोऽसि, all pure, perfect and complete. So that's what we strive for, endeavor towards this perfection. So practice whatever, and I keep saying it requires a lot of effort to get one little bit of your bread on your table for breakfast. How many people are involved? How much space on the earth is required to produce the wheat? What all is done? Who all are involved? Right up to the cows by the time you bring it home. एक छोटी चीज के लिए इतनी मेहनत करना पड़ती है. आपको तो चाहिए पूरी संसार से, इससे मुक्ति, इससे 9 महीना जन्म लेना, स्कूल जाना, सबकी बात जहाँ ये सब सुनना करना है. अरे इसके लिए तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं ना. हम बहुत जल्द से बोलते हैं परमात्मा जब दयालु है तो क्यों नहीं दया करता सब पर. दिया है आपको शरीर बुद्धि मन, इसको इस्तेमाल करना पड़ता है सही जगह सही रास्ते पर. तो शुद्धमसि बुद्धमसि मुक्तमसि निरंजन, all pure perfect and complete. तत्त्वमसि अहम ब्रह्म जैसी, not Brahma. You can't ever become Brahma. I'm Brahma, सच्चिदानंद, संकल्प, मोक्ष,
शिव शक्ति रितम, संकल्प करे, साधना, पुरुषार्थ, अभ्यास, विवेक, तब वैराग की प्राप्ति होगी, डिटैचमेंट, then you get this intellectual capacity to separate yourself. तो ये जो तामसिक स्थिति होती है ना, सुबह उठ नहीं पाते हैं, उस अलग होने लगती है। आपको सुबह सूरज के साथ में अपने आप साइकिल बन जाता है कि आप सही समय पे उठोगे, ब्रह्म जो है ब्रह्म सुबह का समय, उसमें उठ जाओगे। जो राजसिक स्थिति है, मन की चंचलता, निष्काम कर्म अपने फिर होने लगता, फिर कारण शरीर आत्मा की जो जन्मों जन्मों का संस्कार है, क्लेश होती, मैल जो बैठी होती, उससे निकलता है धीरे धीरे। अब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अग्निदेश, मृत्यु का भय, उल्टा ज्ञान लगाओ बंदे की भावना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि। इससे तो बात पीत का आपकी शरीर की बैलेंस, बराबरी होती है। जागृत स्थिति, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या, तुर्य, तत्, भार्गव, चेतना, ये स्थिति है, सब आपकी अंदाज होने लगती है। आपकी शब्द वाणी अंतर है, वाणी में क्या संकल्प आएगा, ध्यान, ज्ञान प्राप्ति होती, अन्न, जल, अग्नि, आकाश, स्मृति, आशा, प्राण, आत्मा, परमात्मा, ऐसे ही स्टेप्स होती है। तो लोकेष्टा, कुतेष्टा, वितेष्टा, अटैचमेंट दूर होगी, मैत्री भाव, करुणा, मुदिता, उपेक्षा की प्राप्ति होगी। तब आपकी जो अन्नमया कोश, मनमया कोश, प्राणमया, विज्ञानमया, आनंदमया कोश, इस शीत से 5 लीटर, तब अहिंसा, सत्य, आस्तिया, ब्रह्मचर्य, पिगरा, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान की प्राप्ति आती है। चित्र दो, मूल दो, विचित्र दो, एकाग्रह की प्राप्ति, सर्विकल्प से सर्विचार, सर्विस से नर्विस, संप्रजा स्थिति से संप्रजा, सर्वगुण से निर्गुण, सान, सुष्मिता, कैवल्य, धारणा, ध्यान, समाधि, संयम की प्राप्ति, सिद्धि तक प्राप्त होती है। अनिमा, महिमा, गरिमा, लरिमा, महिमा, प्रजापति प्राप्ति, कम्य, स्तवा, विस्तवा। तो ये तो है, क्यों नहीं, सभी पा सकते हैं, सभी को कोशिश करनी चाहिए। इतनी बड़ी शक्ति आपको, हम एक छोटी छोटी डिग्री में इतनी बड़ी ईगो हो जाता है, मैं टीचर, मैं ये, मैं क्या है। आप ये ज्ञान पाइए जो आपको ले सकता है, ब्रह्मांड तक ले जाएगा। ओम सत्यम, ओम जानम, ओम अनंतम, ओम ब्रह्मा, ओम सत्यम, ओम जानम, ओम अनंतम, ओम ब्रह्मा, ओम आनंदः, ओम आनंदः, ओम सत्यम, ओम ज्ञानम, ओम अनंतम, ओम ब्रह्मा, ओम आनंदः, ओम आनंदः, ओम आनंदः। मंत्र चिकित्सा, संस्कृत मंत्र, उसका वाइब्रेशन एनर्जी। ओम तक चक्षुर्देहितम पुरुषाचुकृत वशेन शरदा शतम जीवेन शरदा शतम श्रेयाम शरदा शताम प्रभाम शरदा शताम अदीन श्याम शरदा शतात द्विश्यम शरदा शतात यज्जाग्रतो दूरमय दैवितम दैवितम दूरमम ज्योतिषाम ज्योतिरीकम तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्युर्मुक्ष्मामृतात्। ओम तेजोमसि तेजोमयि देहि, ओम बलमसि बलमयि देहि, ओम ओजोमसि ओजोमयि देहि, ओम वीरमसि वीरमयि देहि, ओम सहोमसि सहोमयि देहि, ओम मनुर्मसि मनुर्मयि देहि, ओम तनुपाग्नेसि तनुममे पाहि, ऋचोदाग्नेसि वैश्वमे देहि, ओम तनोमा तन्ममा भवतु मा। ओम तमेव मा च पिता तमेव बंधुशका तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देवा। ओम विश्वादेव सवितर्दतानि पराश्वा यद्भद्रं तन्नाश्वा। ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक्या सदा धारित विद्यामुते मकृष्मै देवायाः दिशा विधेम। व्यात्मदा बलदा यस्य विश्वोपास्ते पश्यं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युं तस्मै देवायाः दिशा विधेम।
ओम या प्राण तु निमिषतो मयि त्वयिकेन्द्रजा जगतो भावुआ या ईशे से द्विपचस्पतुष्पदा कृष्णै देवाया विषाभिदेमम् ओम येन देवरुग्रापित विचदिरा येन स्वास सवितम येन नाका योऽन्तरिक्षे राजशो विमाना कृष्णै देवाया विषाभिदेमम् ओम प्रजापतिर्देतानन्द विश्वाजातानि परिता भभुआ यत्कामास्ति जहुमस्तन्न सुवैव श्यामपतरोरहिनाम् ओम सन्नो बंधुर जनिता सविदाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानिशान्ना शशिक्रिये धामन्न धैर्यन्ता ओम अग्नेन सुखतारा स्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यदस्मज्जौरान् मेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम ओम नमो शंभवाय च नमो भवाय च नमः शंकराय च नमस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम शन्नो मित्राय शन्वरुणा शन्नो भरिगो हरिमा शन्नो इंद्रो बृहस्पते शन्नो विष्णु रुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्तवाय प्रतीक्षम ब्रह्मादि तवे प्रतीक्षम ब्रह्मादि स्वामी रिक्तम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि तन्ममौतु तत् वाक्तरामौतु मामौतु वाक्तराम ओम शन्नदेवी रविष्टया आपो भवन्तु पीते शन्नो रवि शर्वन्तु न ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु ओम स्वस्ति न इन्द्रो बृहद्देवाशा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टाशर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु न ओम स्वस्ति न इन्द्रो बृहद्देवाशा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टाशर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु न ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम देना तक्तेना भुजिन्ता ओम यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे ओम कुर्निवाहि कर्माणि जिजे विषयताम समायोत्वेति नान्यतिथि अस्ति न कर्म लिपते नवे उमस्तु मा सत्गमया तमसु मा ज्योतिर्गमया मृत्युमा अमृतं गमया ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेतु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेतु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेतु ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते 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 ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति रोषदय शांति वनस्पति शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांति रिधि ओम शांति 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 ओम परमात्मा का कृपा बना रहे जी। आप इसे खोलो धीरे से, आप धीरे से अपने ओम करावसे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभावते कर दर्शना। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। नए साल आप सभी को खुशियां लाए, परमात्मा की आशीर्वाद बना रहे, ऐसे जुड़ते रहिए जी। अपनी जो सब लक्ष्य है पूरा होते जाए। धन्यवाद। नमस्ते। डॉक्टर साहब आपको भी नया साल मुबारक हो बहुत बहुत, और ईश्वर करे कि सबके लिए ये नया साल
सारे विश्व के लिए अच्छा हो, वो सुख शांति रहे, और सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आपका एक बार फिर धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मुझे आपसे एक बात करना है, बाद में अगर आप ठीक समझे तो मैं आपको बाद में फोन करता हूँ इसके जी, बाद। अच्छी बात। हाँ, धन्यवाद। namaste ji. Okay, thank you all. Thank you for coming. Yeah.